Hello students, I am Mrs. Navdeep Kaur. We are doing the book Scarlet Letter which was published in 1850. The book contains 24 chapters and we will do chapter wise summary of the story. Why chapter wise? Because only then you will come to know about the plot construction of this story side by side, how main character enters in the story and what they symbolize, what is the meaning of the story, about how writer has described the theme with the help of character as well as the main conversation of the story. In first chapter we will see that all are standing in front of prison house door. Why they are standing? They are waiting for Hester, who has committed sin of adultery, and it is not acceptable by the society. That is why all are standing to watch her. Hester Prynne is coming outside. The scene is very ugly and gloomy, but there is one rose bush. The rose bush is symbol of positivity in the gloomy world of sin and crime. In chapter 2nd, we see that she is now outside and she is having a baby, a girl baby in her hands. The baby is the symbol of her crime, her illicit relationship with other men. She is wearing a dress embroidered scarlet letter A. A stand for adultery. All are talking to each other that she has committed sin and she is taken to the scaffold. In chapter 2, it is described that who is Pearl. We will come to know about Pearl. The crowd is unsympathetic, why unsympathetic, and about Hester's nature. While she is standing on the scaffold, she is thinking about her past life in England, how she was living happily with her father, husband, but now all the situation has changed due to her sin of adultery. She is feeling shame now, thinking about her past. She is standing the scaffold and all are talking about her that her husband has left her for 2 years and she fell in love with her lover and having illicit relationship for her. हेस्टर की जो बेटी है पर्ल, पर्ल इज़ अ सिंबल ऑफ हेस्टर सिन, जो उसने सिन कमिट किया है उसका ही प्रोडक्शन पर्ल है। रोज़र चिलिंगवर्थ के बारे में पता चलता है कि वो उसका लीगल हस्बैंड है लेकिन उससे काफ़ी उम्र का बड़ा है, केयर नहीं करता उसकी। दैट इज़ वाई हेस्टर फील isolation and suffer from isolation and have fallen in love with other man. She is standing at scaffold and thinking why she has committed sin and all the results are there now. She is wearing scarlet letter A. सब लोग उसको देख रहे हैं, उसको शेम आ रही है, लेकिन शी हैज़ कन्फेस्ड हर क्राइम। मेन बात ये है कि उसने अपना कन्फेस कर लिया है, क्राइम ये किया है, लेकिन वो इसके साथ अपनी बेटी को नहीं छोड़ना चाहती। वो कहती है कि मैं अपनी बेटी का पालन पोषण करूँगी, बेटी की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगी। द अथॉरिटीज़ आस्क्ड हर टेल द नेम ऑफ सिन पार्टनर। सभी उससे पूछते हैं कि अपने सिन, जो आपने सिन किया है उस आपके पार्टनर कौन है, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं देती। वो यही सोचती है कि अगर उसका हस्बैंड उसको ना छोड़ के गया होता तो वो ये सिन कमिट करती ही ना और ये सब कुछ होता ही ना। लेकिन स्कैफोल्ड पर उसको काफ़ी देर तक खड़ा किया जाता है। क्यों खड़ा किया जाता है? ये उसकी पनिशमेंट है। हेस्टर पनिशमेंट इज स्टैंडिंग ऑन द स्कैफोल्ड फॉर 3 आवर्स रीडिंग अ लेटर ए। 3 आवर के लिए उसको खड़ा किया जाता है और ये प्रेजेंट करता है कि वो एक सिनर है। स्कैफोल्ड पर क्यों खड़ा किया जाता है? ताकि वो थोड़ा दूसरों से अलग जगह पे खड़ी होके वो खड़ी हो और उस सब उसको देखें,
फर्स्टली। दूसरा, स्कैफोल्ड पर उस इंसान को खड़ा किया जाता है कि इसने ये पनिशमेंट की है, अब ये यहाँ पे अपना लोग उसके विटनेस बनते हैं और सब उसको देखते हैं ताकि वो आगे से कोई और ये वाला सिन कमिट ना करे। एक ऊंची जगह पे थोड़ा सा छोटा सा चबूतरा टाइप होता है स्कैफोल्ड। नेक्स्ट वी सी दैट वाई हर हस्बैंड गोट लेट। लेट क्यों हो जाता है? वो फोन्ड ऑफ होता है कुछ मेडिसिन की सर्च के लिए, इसलिए वो वहाँ पे अटलांटिक ओशन को पार करता हुआ कोई प्रॉब्लम आ गई उसको और वहाँ पे वो डिले हो गया। हस्टर का जो हस्बैंड है वो अपसेट होता है बेबीज़ फादर इज़ नॉट शेयरिंग इन पब्लिक पनिशमेंट, क्योंकि बेबी का जो फादर है वो पब्लिक को उसको पब्लिक पनिशमेंट नहीं मिल रही, क्योंकि हेस्टर अपने लवर का नेम नहीं बता रही। अब डिम्सडेल है जो वो फादर ऑफ पर्ल है, ये हमें आगे पता चलता है। डिम्सडेल जो है वो उसका फादर है, लेकिन यहाँ पे आयरॉनिकल पिक्चर क्या प्रेजेंट की गई है, वन साइड ही इज़ प्रीस्ट एंड सेकेंड साइड ही इज़ द फादर ऑफ पर्ल हु इज़ सिंडुअर। यहाँ पर आयरनी कैसे होती है कि प्रीस्ट को कहा जाता है कि आप पूछो हेस्टर से इसका पार्टनर कौन है, सिन पार्टनर कौन है। सिन पार्टनर को ही पूछा जाता है सिन पार्टनर कौन है, और सिन पार्टनर को ही कहा जाता है कि उससे पूछो सिन पार्टनर कौन है। सिचुएशनल आयरनी क्रिएट हो जाती है, बट हेस्टर टर्न हर फेस, शी नेवर रिप्लाइज। All are standing and she is going back to the prison house. She never replies about her lover. पर्ल हाथों में लिए जब वो प्रिजन हाउस में जाती है तो पर्ल काफ़ी क्राई कर रही होती है। पर्ल का क्राई करना क्या शो करता है, वो भी इस सारी बातों से खफा है, उसको भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वो एक इन सब चीज़ों के अगेंस्ट है। काश मैं इस धरती पे आई ना होती तो ये इतना प्रॉब्लम क्रिएट ना होती, काश ये वो सोच रही है। जब वो हेस्टर अपनी बेबी को लेकर जाती है, उसका जो हस्बैंड है वो डिस्गाइज में आता है एक फिजिशियन बनकर। रोजर चिलिंगवर्थ जो है एक फिजिशियन बनकर आता है। वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करता कि वो हेस्टर से मैरिड है, क्योंकि वो रिवेंज लेना चाहता है उसके लवर से, क्योंकि लवर का नेम नहीं मेंशन हो रहा। हेस्टर सेल में काफ़ी अकेली है, बेबी रो रही है, चुप ही नहीं हो रही। और फिर उसका हस्बैंड जो डिस्गाइज करके आता है एज अ डॉक्टर, उसको कहता है कि मुझे बताओ तुम्हारा लवर कौन है। हेस्टर मना करती है, बताती नहीं है। वो कुछ मेडिसिन देता है पर्ल को, तो कुछ टाइम के लिए पर्ल चुप हो जाती है। वो बार बार पूछता है हु इज़ योर लवर, हु इज़ योर लवर, बट नो यूज़ ऑफ आस्किंग। उसकी जो रिवील नहीं करती अपने लवर की आइडेंटिटी को, काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद चिलिंगवर्थ प्रॉमिस करता है कि वो उसके लवर को तबाह कर देगा। अगर वो नेम बता देगी तो ठीक है, वरना वो खुद ढूंढ लेगा और अननोन लवर को पनिश करेगा। उसको काफ़ी लालच देता है कि बता दो मुझे, लेकिन वो नहीं बताती। चिलिंगवर्थ warns Hester if she fails to keep his identity secret, then he will hurt Pearl's father. चिलिंगवर्थ उसको वॉर्न करता है कि अगर उसने उसकी आइडेंटिटी को नहीं सीक्रेट रखा तो उसके लवर को ज़्यादा परेशान करेगा। लेकिन हेस्टर कहती है कि वो कुछ भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आफ्टर हर इम्प्रिजनमेंट हेस्टर इज़ फ्री टू लीव बोस्टन। अब उसकी प्रिजनमेंट में सज़ा ख़त्म हो चुकी है, अब वो सोसाइटी में रह सकती है, लेकिन उसको सोसाइटी से बाहर एक कॉटेज में रखा जाता है जहाँ पर वो अकेली रहती है। सोसाइटी के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है।
Side by side, the novel explains the theme of sin. Hester is the loneliest of all the characters. She is terribly suffer from the sense of sin and guilt. Moral isolation, we can say all the major characters are morally isolated. उसका हस्बैंड भी आइसोलेट फील कर रहा है, हेस्टर तो आइसोलेट है ही, और रोजर चिलिंगवर्थ है जो, वो भी, उसका हस्बैंड जो है आइसोलेशन में है. दे हैव कमिटेड सो डिमोरलाइजिंग सिन दैट दे फील मोरली कट ऑफ फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमैनिटी. हस्बैंड का सीन क्या है कि वो उसको पहले छोड़ के गया, फिर टॉर्चर कर रहा है वाइफ को. वाइफ का सीन तो है ही अडल्ट्री का. जो पार्टनर है वो भी साइकोलॉजिकल हर्ट हो रहा है. साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट इज शोन वेरी ब्यूटिफुली बाय राइटर. लवर को ही कहा जा रहा है कि आप देखो किसने, ये सिन पार्टनर कौन है. वो एज अ प्रिस्ट अपना रोल अदा कर रहा है. प्रिस्ट की ड्यूटी है पूछना कि आपका सिन पार्टनर कौन है. एक तरफ से वो सिन पार्टनर की ड्यूटी फॉलो की उसने, दूसरी तरफ वो प्रिस्ट की ड्यूटी फॉलो कर रहा है. ब्यूटीफुली सिम्बोलिज्म इज प्रेजेंटेड हेयर. सिम्बोलिज्म ऑफ नेम ऑल्सो वी विल सी. पर्ल जो डॉटर है वो रेफर क्या करती है, पर्ल कुछ कीमती चीज़ है, ग्रेट प्राइस है जिस चीज़ का. हेस्टर के लिए पर्ल ही सब कुछ है. हेस्टर के लिए अब इस लाइफ में पर्ल ही सब कुछ है. हस्बैंड ने भी छोड़ दिया, लवर भी नेम नहीं बता रहा और साथ नहीं रह रहा. अब एक पर्ल है जो उसके लिए सब कुछ है, इसलिए पर्ल मीन्स कीमती कुछ चीज़ जिसका काफ़ी प्राइस है उसके लिए. डिम्सडेल, डिम प्लस डेल, देखिए ध्यान से, डिम्सडेल, द टू पार्ट ऑफ हिज नेम डिम एंड डेल. डिम मीन्स डार्कनेस, फेंटनेस और वीकनेस. डेल मीन्स वैली और हर्ट. जिसका वैली या हर्ट जो है वो काफ़ी डिम है, ट्यूबलाइट की तरह है. डिम्सडेल. जो लवर है इतना लास्ट में आके रिवील करता है अपना नेम, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है टू एक्सेप्ट his sin of adultery. Chillingworth, chill plus worth. Chillingworth, chill plus worth means coldness and cold hearted. Cold hearted ही है वो, coldness and cold heart person है वो. उसको कुछ मतलब नहीं है, अपनी वाइफ को पहले बीच में ऐसे छोड़ के चला गया, अब आके रिवेंज ले रहा है. Isolation is the central theme of the novel. Hester never feels oneness with society. She is living isolated in the society. सोसाइटी वाले उसके साथ बहुत भेदभाव करते हैं, लेकिन वो अपना बेस्ट देती रहती है. Pearl is also victim of isolation because she is Hester's sin, production of sin. Needlework. She was fond of doing needlework. It becomes the fashion of that day in society. Needlework is also having symbolic meaning in this book. Hester at her best in doing needlework. The people of Bosom ill-treat her. उससे बुरा व्यवहार करते हैं. She still continue to have social intercourse. वो सोशल इंटरकोर्स कैसे करती है, अपने नीडल वर्क की जो उसके अंदर स्किल है उसके द्वारा वो अपना टाइम पास भी अच्छे से करती है, कुछ अर्निंग भी हो जाती है ताकि वो पर्ल को पाल सके. बट जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो कोशिश करती है गरीबों की हेल्प करने के लिए. शी हेल्प्स द पुअर एंड द नीडी इन स्पाइट ऑफ ऑल द क्रुएलिटी एंड इंडिफरेंस ऑफ द पीपल. लोग उसके साथ इंडिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, बैड बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करती है, अपनी बेटी पर्ल के साथ खुश रहना चाहती है और सोसाइटी की सेवा करना चाहती है ताकि जो उसने जो सिम कमिट किया है उसका कुछ उसको गिल्टी कम हो. हम देखते हैं कि जो पर्ल है वो मिसबिहेव है. मिसबिहेव क्यों है, मिसचीफ चाइल्ड है, इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, लेकिन उसके अंदर रूडनेस है. क्यों रूडनेस है, मिक्सचर ऑफ
करैक्टर के जो डेवलपमेंट दिखाई गई है इसलिए दिखाई गई है क्योंकि वो प्रोडक्शन है उसकी अडल्ट्री का। अच्छे से वो उसका करैक्टर डेवलप नहीं हो रहा बिकॉज़ उसको सोसाइटी से कोई प्यार नहीं मिल रहा, फादर उसके पास है नहीं, और जो एक जो उसके फादर जिससे उसका बर्थ हुआ है वो भी उनके साथ नहीं है। तो वो बार बार पूछती है मेरे फादर कौन है, मैं कैसे आ गई दुनिया में, कैसे आ गई मैं अगर मेरे फादर नहीं खड़े। तो उसको काफ़ी पेन दिखाई गई है। जो हेस्टर है उसको बार बार गले से लगाती है जब पर्ल रोती है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद पर्ल एक सोसाइटी से आइसोलेटेड फील करती है। बच्चे अगर आते भी हैं कोई तो वो उन पर पत्थर फेंकती है। ये सब शो करता है पर्ल भी किस तरह से हर्ट हो रही है, और अपने फादर के बिना अपनी मदर के साथ रहना और सोसाइटी से दूर रहना उसको अच्छा नहीं लगता।